Good morning, students. Let us continue with the chapter. We had studied till what is suspension. Let us go through the whole chapter, the previous one also. So, we had started with what is mixture, what are the types of mixtures, how could we differentiate them into different solutions, and having different solutions with their different properties, and on the basis of their properties they can be separated from each other. So till colloids we had studied. Now the methods, now we will continue with the methods of separating the components of a mixture. So on the basis of their nature and texture, we can classify or separate them in different forms. So let us start with the very first form. Here we have dye, that is a blue ink, that is we will take blue ink or a black ink. Along with that we will use the particular mixture in a solution. See, ink is a dye. So to separate dye, मतलब हम कह सकते हैं कि इंक जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर. नाउ हाउ कुड बी सेपरेट डाई फ्रॉम वाटर? We will have this particular activity of evaporation. Here what we had taken, as per the image you can see that the beaker is getting boiled, and along with that particular boiling you will see a watch glass was kept above the particular बीकर. अब उस बीकर पे हमने वॉच ग्लास रख दिया है और उस वॉच ग्लास में इंक डाल दी है. अब आप देखेंगे जैसे जैसे उसे हीट मिलेगी, द कंटिन्यूस हीट विल गो एंड वी विल हीट द इंक इनडायरेक्टली. हम डायरेक्टली इंक को हीट नहीं कर रहे हैं, हम वाटर को हीट कर रहे हैं जो बीकर में है, एंड देन इट स्टार्ट हीटिंग द ink also. And if you observe carefully this, you will see that the water is a solvent, and because ink contains water along with dye, so dye is in, so हम बोल सकते हैं कि dye is the solute part of a mixture, and it will be separated out as only during that evaporation process water will evaporate, and you will find only the dye will be there. So we will separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. This is the first method. Now the second one, we had already discussed about that how we will separate milk, cream from milk. We know that we use toned milk, double toned milk. हमने ये नाम सुने, Tetra Packs. You heard about all these varieties of milk as it contains different amounts of fats. So what we will do, we will take full cream and centrifuges it with a centrifuging machine, और वो मशीन को हम 2 मिनट के लिए यूज़ करेंगे. इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, यू जस्ट हैव दैट चर्नर, मिल्क चर्नर जो हमारे घर में मम्मी यूज़ करती है. यू विल सी दैट अ पर्टिकुलर reaction will occur physically. We don't have to add anything. So if you had a milk or dairy near about yourself, your home, you will find that how they can separate milk, cream from milk. So the solid particles which we see in that particular liquid, they are very small, that can easily be passed through a filter paper. So for these types of particles which can easily be filtered from filter paper, we cannot use the filtrate technique. So for that we will use centrifugation method. So here we will see that even ये principle ये बताता है कि the जो lighter particles होंगे that will churn and stay at the top, and the denser will settle down at the bottom. So this is a very important property. And next what we have application regarding this. Application means हम इस method को कहाँ कहाँ utilize कर सकते हैं. So we will use in diagnostic laboratories for blood and urine test, even in dairies and homes to separate butter from milk, and in washing machine, ताकि हम लोग क्या करते हैं जब स्क्वीजिंग वाला प्रोसेस शुरू होता है वेट क्लोथ्स के लिए, वहाँ पे हम देखते हैं कि अ प्रॉपर फॉर्म विल फॉर्म एट द टॉप ऑफ द वाटर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquid? So first of all we must understand what is immiscible liquids. Immiscible liquids का मतलब ये होता है कि you cannot separate them, जैसे oil and water. So for making them a particular separation, what we will do, we will have this type of arrangement of immiscible liquids. Here we will see that kerosene oil is there, water is there, and a stopcock was there. So what will happen after a few minutes, we will consider that
we can easily separate them with the help of particular arrangement. So how it will happen, the lighter part will go, देखो जो कैरोसिन ऑयल है वो ऊपर ही है, और वो आपको पता ही है जब ऑयल इन वाटर होता है या हम ऑयल और वाटर का मिक्सचर भी देखते हैं तो जो ऑयल होता है वो ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, एंड वाटर इज़ अ डेंसर एज कम्पेयर टू द ऑयल. सो इट विल व्हेन वी ओपन द नॉब द वाटर will come out and the rest will be the oil only. So this is the method in which we see that immiscible liquids separate out in layers depending upon their density. So this is the third method. Now how could you separate salt and camphor? Okay, camphor के एक मुझे camphor का एक method याद आया है, अगर आपको याद हो, we had done in matter chapter 1 chemistry that sublimation process is there where we found that sublimation में हमने देखा था कि कैसे solid जो है वो directly convert हो जाता है gaseous में, वो liquid में transform नहीं होता, directly gaseous में convert हो जाता है. So camphor is one such example. So let us go, हम कैसे camphor को salt से अलग कर सकते हैं. So देखो प्रॉपर्टी क्या है कि मेन ये वॉलेटाइल होते हैं, सब्लिमेबल वॉलेटाइल, यानी कि ये जल जाते हैं. किस तरह से जलते हैं, यू जस्ट अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोसेस ओनली. तो वहाँ पे हम सब्लिमेशन प्रोसेस ही यूटिलाइज करेंगे. सो जो सॉल्ट है वो डायरेक्ट सब्लाइम नहीं होता, वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू गैशियस फॉर्म. बट नैप्थलीन है, एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन इज अगेन अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. अमोनियम क्लोराइड है एंड कैम्फर इटसेल्फ, ये सारे जो होते हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं गैसेस में. सो इट इज़ ईजी टू डिफ्रेंशिएट देम ऑन द बेसिस ऑफ सब्लिमेशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वी कैन कंसिडर दैट द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. So this is a very interesting and my favorite method in which you see the chromatography. हम जब लैब में भी करेंगे तो इट विल बी द बेस्ट पार्ट, बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ पेपर मैंने लिया है, इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर पेपर. आई विल ड्रॉ अ पर्टिकुलर लाइन ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन एंड आई विल जस्ट पुट अ स्पॉट ऑफ इंक ऑन दैट पर्टिकुलर फिल्टर पेपर, और उसको मैं फिर इस तरह से स्ट्रिंग के थ्रू ग्लास रॉड लगा दूँ या कैसे भी करके उसको हैंग कर दूँगी इस पर्टिकुलर जार में जहाँ पे ऑलरेडी वाटर है. और आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो वाटर जो है वो अपने आप इवोपोरेट होके यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इन दैट. वो इंक जो है वो स्प्रेड हो जाएगी एंड इट यू विल सी 2 और मोर कलर्स. और ये कलर्स जो होंगे वो जैसे जैसे इवापोरेशन प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो उस फॉर्म में हमें अलग अलग फॉर्म में शो होते रहेंगे. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. क्रोमा का मतलब ही होता है कलर. सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी कैन डिफ्रेंशिएट दैट इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. सो ये टेक्निक जो है वो कलर्स को सेपरेट करने के लिए बनी गई थी शुरू में, और अब हम इनको सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब क्रोमा कलर तो डाइज, कलर्स इन डाई वो वहाँ पे यूज़ हो सकता है, नेचुरल कलर पिगमेंट्स में यूज़ होता है, और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, इन सब में भी हम इनकी एप्लीकेशंस देखते हैं. सो this is all about chromatography. Now we have a mixture of two miscible liquid. miscible यानी कि जो एक तरह से डिज़ोल्व हो चुके हैं एक दूसरे में, जैसे एसीटोन और वाटर है. अब हम इनको कैसे अलग करेंगे? So here we have an apparatus where we see that two miscible liquids are separated by the method of distillation. The whole arrangement is given in the beaker. You can see acetone and water, and the particular burner was on there, and slowly and gradually when you see that the particular mixture is heated, the acetone will vaporize, और वो धीरे धीरे कंडेंस होके, ये जो आप देख रहे हो ना वाटर आउटलेट, वहाँ पे वाटर कंडेंसर भी है जहाँ से वो रिलीज़ होके एसीटोन जो है कंडेंस फॉर्म में धीरे धीरे हमें दूसरे बीकर में मिल जाएगा. सो दिस इज़ द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. द नेक्स्ट मेथड, बिफोर दैट एक और अरेंजमेंट इन्होंने दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. सो लेट्स हैव दैट. ये सेपरेट किए हमने अब तक देखा कि ये दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के काम आता है. अब फ्रैक्शनल से एज द नेम सजेस्ट कि फ्रैक्शनल्स में यू विल सी द फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस और अ मिक्सचर. सो इफ़ वी हैव मोर देन two miscible liquids, how could we separate them? So the apparatus is just similar to the above one.
एंड यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यही मेथड को अप्लाई करके हमने धीरे धीरे यहाँ पे कॉलम्स बना दिए हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स जिसे कंसिडर करेंगे, एंड यू विल गेट द सेपरेटेड लेयर्स, और उस बेसिस पे हम उसको धीरे धीरे अलग कर देंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. सी, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विच एयर इज़ पासिंग बाय अस, एंड एयर को हमने कभी देखा भी नहीं, वी जस्ट फील. सो हाउ कुड वी ऑब्जर्व द प्रॉपर प्रोसीजर. सो फॉर दैट हियर इट इज़ मेंशन इन द फ्लो डायग्राम दैट वी विल कंप्रेस, हम उसको ठंडा कर देंगे बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके आपको लिक्विड एयर मिल जाएगी. अब उसको थोड़ा गर्म होने दो ताकि हम उसको कॉलम्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें अलग अलग हाइट पे. आप देखोगे कि वो हर एक डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग गैसेस को रिलीज़ करेगी. और अगर आपको ऑक्सीजन गैस चाहिए तो आपको -183 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगी. तो दिस इज़ अगेन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड ओनली, इन विच यू कैन सी दैट एयर इज़ ऑल्सो सेपरेटेड, because air is nothing, air is not only a single terminology, but it contains the homogeneous mixture of gases. So this is the whole procedure where you will see that यहाँ से air अंदर आती है, हम यहाँ पे एयर को प्रॉपर प्रेशर देते हैं, फिर वो हॉट एयर जो है वो कंडेंसर में जाती है, जहाँ से हम देखेंगे कि अलग अलग फ्रीज़र अलग अलग टेम्परेचर पे वी विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर. सो जो सेपरेटर होगा वो उसको सेपरेट कर देगा, और इसमें से जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वी विल सेपरेट ऑक्सीजन का जो आपने देखा था हियर इट इज़ रिटन -183. सो हम लोग उस बेसिस पे उसको सेपरेट कर लेंगे और वी विल गेट अ पर्टिकुलर जो गैस हमें चाहिए थी, दैट इज़ ऑक्सीजन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैम्पल. सो पहले तो हमें वो इम्प्योर सैम्पल लेना है कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट इज़ CuSO4. ये एक चाइना डिश में हम डालेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हम गर्म करेंगे. नाउ अब उसको फ़िल्टर कर दो. आपको क्या मिलेगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो अब अपने सैचुरेटेड फॉर्म में होगा, और फिर हम उसको फ़िल्टर पेपर के थ्रू थोड़ी देर के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस छोड़ देंगे. एंड वॉट यू विल फाइंड इन द चाइना डिश, you will find some crystals, few crystals of china dish. So this whole process is called crystallization, और यही crystallization जो है वो solids को purify करने के काम आता है. जैसे हम सी वाटर से सी वाटर को यूज़ करते हैं टू गेट द सॉल्ट और टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़. So crystallization is a method in which you can see that a pure solid is formed from its crystal. So ये एक better technique है other than the it's a good alternate from evaporation जो हम simple method देखते हैं. So this is all about आवर टॉपिक दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन. और इसमें क्या होगा, अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो आप देखोगे कि जैसे कुछ सॉलिड्स है लाइक शुगर, ये जो होते हैं हीटिंग पे ड्राई हो जाते हैं. आप कभी शक्कर को गर्म करके देखना, ये ग्लूकोज को फॉर्म में आपको ब्लैक सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है. और कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होगी उसमें हम उसको इवापोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं. अब एप्लीकेशन ऑब्वियसली वी आर डिस्कस्ड अबाउट सॉल्ट एंड वाटर. सो हम जो सॉल्ट को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें किसी क्रिस्टल को उसके इम्प्योर सैम्पल से अलग करना है देन ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज दैट. सो these are the two methods which will be applicable under the technique of crystallization. अब ये देखो सिटीज़ में क्या होता है, जैसे हमारी सिटीज़ है या फिर नॉर्मल जनरली क्या होता है कि ड्रिंकिंग वाटर जो भी हमारे घर पे आता है वो कैसे आता है. एक प्रॉपर फ्लो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा हाउ ड्रिंकिंग वाटर कम टू आवर टैप. बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द कैंस एंड ऑल, बट हियर इज़ द प्रॉपर कंडीशन. एक रिजर्वायर, एक बड़ा सा टैंक होता है हर एक सिटी में, फिर वहाँ से वो एक बड़ी से सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं. और उसके अलावा भी जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, उसको फिल्ट्रेशन टैंक के थ्रू होके जाना पड़ता है. और लास्ट प्रोसेस हमारा क्लोरीनेशन का होता है, इन विच वी विल यूज़ क्लोरीन टैबलेट्स टू किल द बैक्टीरिया, एंड एट लास्ट वी गेट द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर. So this is all about the different methods or the techniques to separate the things. That's all. Have a good day. Thank you so much, dear.